Hello, everyone, and a very good afternoon, sir. I'm Dr. Supriya Punia Chaudhary, consultant and gynecologist and laparoscopic surgeon at BK Multispeciality Hospital, Aboha. I welcome you all to a very exciting discussion on the topic medicine do's and don'ts after an IUI cycle. It's my absolute privilege to welcome you, sir, and it is my honor to moderate this session and to kickstart it without much ado. I would like to welcome Dr. Colonel Pankaj Talwar, VSM MD PhD. Sir is a distinguished name in the field of reproductive medicine and needs no introduction. It's my honor to welcome sir. Thank you. Dr. Thank you, Supriya. Thank you, sir. Thank you. Dr. Pankaj Talwar is the CEO at iHoma Fertility Clinic and IC Training Academy at Gurugram, Delhi. Serves the Dean of Department of Clinical Embryology at Sridhar University, Pilani, and PhD in Clinical Embryology. Serves the founder of Global ART Digital School and founder secretary of Fertility Preservation Society. Sir has trained more than 1,700 students globally in the ART in past 3 years across 23 countries and has experience of setting up approximately more than 29 ART centers globally. Sir has been awarded Vishisht Seva Medal by the President of India for his exemplary work in the field of infertility. Sir has edited numerous books and has several publications and many years of experience in the field of infertility. It's my absolute honor to welcome you, sir. Let's now address the elephant in the room and talk about IUI. IUI is in intrauterine insemination. During this procedure, the sperm is directly placed into a female's uterus via a catheter. जब प्रोसीजर तब किया जाता है जब या तो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो या फिर फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो, जैसे कि एनओवुलेशन की लेडी के एग्स नहीं बन रहे हो, या फिर एंडोमेट्रियोसिस, या फिर कोई अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स ऑफ इनफर्टिलिटी हो. तो चले हम डॉक्टर पंकज तलवार से आईयूआई प्रोसीजर के बाद में जो होने वाली मेडिसिन हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं. And who else rather than Dr. Pankaj Talwar to guide us in the field of infertility? So, Thank you, Supriya. Thank you very much. So, thank you very much for such kind introduction. I think Thank yes, we are ready. Last, I think 10 days back, we had a similar session on IUI again. We spoke Right, sir. about how much does an IUI cost. फिर Right, sir. खूब सवाल आए कि IUI तो कॉस्ट हुआ, बट IUI के बाद हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज पीपल हैव फाउंड दैट जब हम एक छोटा सा प्रोसीजर करते हैं IUI का, तो फिर Right, sir. कई बार पेशेंट्स ना खूब फिर दवाइयाँ लेकर आते हैं, अब ये दवाई खा लें, ये खा लें, एंड समटाइम्स they ask, they're so anxious that they start taking a large number of medicines. I think that is not right. And उसका खर्चा भी आता है. So keeping that in mind, we thought we'll talk about how much the expenditure, what to do after an IUI. This is the basic aim of this particular conversation today. Right, So sir. and that's why at the very onset, I think I'd like to thank everyone present here. And आप लोगों से हमें बहुत प्यार मिलता है और I think it's due to you. We people again and again we come back to you every 15 days and start a new topic, and we cover multiple topics pertaining to infertility or fertility or PCOD, endometriosis, low sperm count. So I think your being with us gives a lot of strength. So with that, I'll hand over the mic to you, Dr. Supriya. You can take it on. I'd like to take any queries which you put to me. Sure, sir. Thank you, sir. सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि मेरा एक आईयूआई प्रोसीजर हुआ है, तो इसके बाद मेरी मेडिसिन कितना टाइम तक खानी पड़ेंगी, मुझे कौन सी मेडिसिन खानी पड़ेंगी और कितना टाइम तक खानी पड़ेंगी? तो सबसे पहले अगर आप मेरे से पूछें आईयूआई हम इसका ना लेट्स लुक एट इट, हम आईयूआई कब करते हैं? जब भी किसी भी स्त्री की ट्यूब्स ओपन होती हैं, एक या दोनों, और जो स्पर्म काउंट है दैट इज एवरेज और इट इज मोर देन 5 million or 3 million total post wash motile count, we can do an IUI. Right, sir.
एक बात समझने की ये है कि आईयूआई इज ए वेरी सिंपल प्रोसीजर, और आईयूआई के बाद हम कोई भी तरह की दवाई देना रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर हम किसी भी एक दंपति का आईयूआई करते हैं जिसके अंदर हमने सिर्फ एक ही एग जनरेट करा है, हमने 2 एग जनरेट करे हैं, वी हैव नॉट गिवन देम एनी हार्मोन्स, देन वी डोंट Right. गिव एनी ट्रीटमेंट। आप खुद देखें ना, हम अपने फैमिलीज के अंदर हमारी हमारी मदर्स और पीपल अराउंड अस, डू दे टेक ए टैबलेट टू कंसीव अस? दे डोंट। सो आईयूआई इज वन सिंपल प्रोसीजर जहाँ पर हम स्पर्म्स को प्रिपेयर करके गर्भाशय के अंदर उनको स्थानांतरण करते हैं, वहाँ पे उनको हम रखते हैं। तो अगर सब कुछ ठीक है, अगर एंडोमेट्रियम ठीक है, यूट्रस ठीक है, स्पर्म काउंट ठीक है, आई डोंट थिंक वी शुड बी गिविंग एनी पेशेंट एनी tablets thereafter. We don't give. Yes, we do give them folic acid. We do give them some vitamin D supplementations. That is all is required. Right, इसमें sir. तक खर्चा नहीं आता है, परंतु अगर आईयूआई के अंदर हमने किसी तरह के हार्मोन्स इस्तेमाल करे हैं, सो Right. रोहित सुप्रिया, आपके भी घोर के अंदर भी जब आप आईयूआई करते होंगे तो गिव अ Yes. टैबलेट लाइक क्लोमिफीन और लेट्रोजोल, इन दवाइयाँ देते हैं लोगों को Yes, sir. अंडों को जनरेट करने के लिए। अगर हम किसी को क्लोमिफीन देते हैं या लेट्रोजोल देते हैं तो देखिए तकरीबन जो खर्चा है एक टैबलेट क्लोमिफीन का, वो 15-20 रुपए के तकरीब पड़ता है, और लेट्रोजोल का तकरीबन 40 रुपए तक पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन विच कंपनी वी आर बाइंग। टोटल खर्चा लेट्रोजोल या क्लोमिफीन का टोटल खर्चा पड़ता है तकरीबन हमको अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 200-250 रुपए का मैक्सिमम। क्लोमिफीन विल बी मच चीपर, मे बी ₹70-80 only, एंड टेबलेट ऑफ फोलिक एसिड, एंड वी डोंट गिव एनीथिंग देयर आफ्टर। बट अगर हमने किसी भी बहन के अंदर वी हैव यूज्ड एनी हार्मोन लाइक एचएमजी और एफएसएच, और उनके डिम ज़्यादा बनते हैं, जब उनके डिम एक से ज़्यादा बनते हैं या ज़्यादा डिम बनते हैं, इन दैट केस उनकी ओवरीज डिम तो बनाती हैं पर कमज़ोर पड़ जाती हैं। कमज़ोर मतलब जब भी किसी बच्चे को एक जगह पे स्थापित होना होता है तो उनको रिक्वायरमेंट होती है एक हार्मोन की, जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, पीफर कहते हैं उसको। अगर किसी भी स्त्री का एक एग बनता है, एक ही डिम बनता है, देन वी मे नॉट गिव हर एनी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट। परंतु अगर हमने उनके अंदर क्लोमिफीन और एचएम क्लोमिफीन या लेट्रोजोल के साथ में इस्तेमाल करा एचएमजी को, जो कि ज़्यादा डिम क्रिएट करता है, जब 2-3 अंडे बनते हैं, सो ओवरीज के अंदर ज़्यादा कॉर्पस ल्यूटियम बनते हैं, और वो उनका जो फंक्शनैलिटी होता है वो अच्छा नहीं होता है। इस कारण से जो मेन हार्मोन बनता है आफ्टर ओव्यूलेशन, दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन, वो ऐसे किसी में ठीक से बन नहीं पाता है। इन दैट केस वी हैव टू गिव समथिंग कॉल्ड ल्यूटियल फेज सपोर्ट, तो वहाँ खर्चा बढ़ता है। परंतु जैसा आप सवाल, आपका बड़ा एक स्ट्रेट सवाल था, क्या हम आईयूआई के बाद किसी को दवाइयाँ देंगे, तो मेरा जवाब रहेगा नहीं देते, हम दवाइयाँ नहीं देते। Right, sir. अगर हमने एचएमजी इस्तेमाल करा है और उनके डिम की मात्रा ज़्यादा रही है, यस, इन दैट केस वी डू गिव न्यूट्रिशन सपोर्ट, बट नॉट एज ए रूटीन। बट यस, फोलिक एसिड की गोली हमें देनी चाहिए, क्योंकि एक गोली आती है 5 मिलीग्राम की, हम रोज़ खाने के लिए देते हैं। वी डू गिव देम अ टैबलेट ऑफ थायराइड इन केस हैव अ थायराइड प्रॉब्लम। We do give them vitamin D supplementation in case they require, but nothing else on my side. Right, sir. Thank you so much for this lovely question. Thank you, sir. Thank you, sir. सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा कि कुछ पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमें आईयूआई के बाद विटामिन टैबलेट्स या इंजेक्शन हम लेना नहीं चाहते हैं। क्या हमारे लिए वेजाइनल टैबलेट्स, जैसे कि कोई पेशेंट है जो एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट है या पीसीओडी की पेशेंट है जिनमें आईयूआई रूटीनली किया जाता है, तो क्या उनको वेजाइनल टैबलेट्स लेना ज़रूरी है सर? ये अगेन बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आई थिंक यू हैव स्टम्प्ड मी विद दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये जानते हैं ना, हम कोई प्रिपेयर नहीं करते हैं, वी आर हैविंग एन एक्सटेम्पोर जो हम नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। तो देखो, जब भी किसी पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है, वी आर अज्यूमिंग के आईयूआई करने का इंडिकेशन एंडोमेट्रियोसिस है, ऐसे केस में हमको we should use HMG in every patient because they give you better outcome. So IUI in endometriosis we do with clomiphene or letrozole plus HMG. हम जब भी ये दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, टीके इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा एक
सपना है कि हम जो एग की मात्रा उसको बढ़ाना चाहते हैं बदन के अंदर। ऐसे केस के अंदर आई थिंक वी शुड गिव सम सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ ओरल टैबलेट्स, सम विजाइनल टैबलेट्स या टीके हम लगाते हैं। बात रही पीसीओडी की। पीसीओडी के अंदर हम नॉर्मली लेट्रोजोल ही देते हैं, हम क्लोमिफेन नहीं देते हैं। जब हम किसी को बहन को लेट्रोजोल देते हैं तो शायद उनकी एग नहीं बने। देखो पहली बात तो लेट्रोजोल देने से 2.5 मिलीग्राम देने से या 5 मिलीग्राम देने से एग सबके बन जाते हैं। तो अगर अपने आप से एग उनके बन गए हैं, अगर एक या दो एग बन गए हैं, यू मे नॉट गिव सपोर्ट एट ऑल। पर अगर उनमें एग ज़्यादा बन रहे हैं या फिर हमने एचएमजी ऐड किया है बाद में, तब हमको सपोर्ट देना होगा। अभी सपोर्ट का ये सपोर्ट क्या होता है? हम इसे कहते हैं ल्यूटियल फेज सपोर्ट। ये हमने पहले भी फेसबुक में कवर करा था। किसी भी स्त्री के, किसी भी बहन के जो पीरियड्स होते हैं, माहवारी, वो 28 दिन के बाद में आती है। हम एक मोटा सा नंबर लेके चल रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो आजकल ऑल आर पीपल कम टू अस, दे हैव ऑन देयर मोबाइल फोन सम एप्लीकेशन व्हिच टेल अस अबाउट देयर पीरियड्स। बट अगर हम मोटा मोटा देखें तो उनका पीरियड 28 डेज का होता है। पहला जो 14 डेज होता है उसको हम कहते हैं proliferative phase, और सेकंड फेज होता है, इसे हम कहते हैं secretory या luteal। तो जब भी किसी की स्त्री के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी हार्मोन का, एचएमजी या एफएसएच का, सो उनका जो ल्यूटियल फेज होता है वो कमजोर हो जाता है। तो हमको उसको सपोर्ट करना होता है। नॉर्मली किसी भी दंपति में इसकी जरूरत नहीं होती है, बिकॉज एक ही अंडा बनता है हर केस के अंदर। बट अगर हमने ज़्यादा टीके इस्तेमाल करे हैं तो ल्यूटियल फेज कमजोर हो जाता है। अब ल्यूटियल फेज कमजोर हुआ तो हम क्या दवाइयाँ दें, ये बात जहन में आती है। बट आईयूआई इज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ए बॉल गेम, डिफरेंट। सुप्रिया समझे आप, आईयूआई के अंदर अगर हम देखें कितने लोगों को एजोस्पर्मिया है, कितने लोगों को डोनर स्पर्म कर रहे हैं, तो वो नंबर ज़्यादा नहीं होता है। डोनर स्पर्म हमारी ओपीडी में तकरीबन 8 से 10% ही रहते हैं। अगर आप देखें सो 10 में से एक या दो लोगों को डोनर स्पर्म की जरूरत है, बाकी सबका हम आईयूआई कर सकते हैं नॉर्मली। सो आईयूआई में क्या होता है, एक ऐसी प्रणाली है जहाँ पर हम एक कपल को बोलते हैं कि आपस में रिलेशंस रखें, गो बैक एंड हैव रिलेशंस। बिकॉज हमको लगता है कि अगर हमने उनके एग जनरेट करे अच्छी क्वालिटी के, और अगर दंपति आपस में दोबारा से संबंध रखते हैं, सो आईयूआई के बाद अगर वो 2-3 दिन आपस में संबंध रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि उनमें प्रेगनेंसी आ जाती है। नाउ कमिंग टू, अगर हमें उनको सपोर्ट देना है तो हमें देना है ल्यूटियल फेज, जो सेकंड वाला पार्ट है पीरियड का, जो कमजोर हो जाता है उनका जो कॉर्पस ल्यूटियम कमजोर हो जाता है, इसे हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। इसे एलपीएस कहा जाता है, बहुत मोटी मोटी भाषा में एलपीएस कहा जाता है। तो कहते हैं गोली खा ले, टीके लगा ले, कुछ कहते हैं कि कुछ गोली रख लो योनि के रास्ते के अंदर, वजाइना के अंदर। अभी ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, आईवीएफ के अंदर हम उनको योनि में रखने के लिए दवाई दे सकते हैं, बिकॉज हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया, इट्स ओवर, वो आपस में रिलेशनशिप नहीं रखते हैं। बट इन आईयूआई वी इनकरेज देयर रिलेशनशिप। और अगर हमने उनकी योनि में गोली रखी या उनकी योनि के अंदर हमने कोई जेल या क्रीम इस्तेमाल करा आने वाले 2-3 दिन के अंदर, तो फिर जो शुक्राणु होते हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। वो क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन्स होते हैं वो उनको अफेक्ट करते हैं शुक्राणु को, और वजाइना के पीएच को अफेक्ट करते हैं। सो जब भी हम किसी भी स्त्री का हम आईयूआई करते हैं तो सिंपल मेथड जो सबको हम बोलते हैं, आप ओरल गोली खा लीजिए। अब ओरल गोली खाना बेस्ट इलाज है। या आपको किसी तरह का अगर नीचे कोई वजाइना में कुछ रखना है तो वो 3-4 दिन के बाद में रखें, इमीडिएटली मत रखना शुरू करें। और याद रखो सुप्रिया, आईओआई के अंदर अगर हमें सपोर्ट देना है तो हमें एक सेम डे से नहीं देने की जरूरत होती, बिकॉज हमने उनको ट्रिगर दिया है एचसीजी के साथ में। और हमारी सब बहनों को पता होगा कि एक टीका आता है एचसीजी का, जो सब लगाते हैं। एचसीजी 10,000, एचसीजी 6500। तो एचसीजी बॉडी में काम करता है तकरीबन कब 3 या 4 दिन के लिए। तो बड़ा सिंपल सा है, हम ट्रिगर दें एचसीजी के साथ में, फिर कपल कैन बी टुगेदर फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज, और 3 दिन के बाद में थर्ड डे ऑनवर्ड दे कैन हैव सम वजाइनल tablets. Vaginal tablets they work very well. They're very effective. But after 2 or 3 days in IUI case. Right. But overall, vaginal tablets can be messy. They can they can leak. They can stain our undergarments. आजकल all our
ऑल आर लेडीज आर वर्किंग, सब काम करती हैं, कहीं ना कहीं वो कार्यरत है। सो फिर उनको तकलीफ होती है ऐसी टेबलेट यूज़ करने के अंदर। यूज़ करना चाहें तो सुबह शाम इस्तेमाल करनी चाहिए 400 मिलीग्राम मॉर्निंग इवनिंग, और फिर जेल आते हैं 8% के। पर बेटर वो रहेगा कि अगर वो ओरल टैबलेट लें। तो ओरल टैबलेट्स आर लाइक डेप्रोजेस्टोन टैबलेट्स आर अवेलेबल, दे कैन टेक वन टैबलेट थ्राइस ए डे। और आईयूआई के अंदर टीका लगाना हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं। बहुत सिंपल सा एक प्रोसेस है। तो टीका लगाने में फिर पेन होती है, ज़रूरत होती है नर्स की, तो वी डोंट रिकमेंड दैट। सो इन केस यू आस्क मी वेरी क्लियरली, आई से टेक ओरल टैबलेट्स, वन टैबलेट 10 मिलीग्राम होता है, टेक इट थ्राइस ए डे। दिस इज वेरी वेरी गुड टैबलेट टू बी टेकन। एंड in case you don't like oral tablets, then you can go in for a single support, that's a vaginal support, और वो भी IUI के 2 दिन बाद में, नॉट द सेम डे और लेटर, बिकॉज अगर आप दंपति आपस में रहते हैं तो उनका स्पर्म क्वालिटी इफेक्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। सर, पेशेंट कई बार हमें आके पूछते हैं कि आईयूआई प्रोसीजर के लिए उन्हें ऑलमोस्ट 100-200 किलोमीटर्स ट्रैवल करके एक अच्छे सेंटर पे आईयूआई करवाने जाना है, तो क्या वो आईयूआई प्रोसीजर के बाद ट्रैवल कर सकते हैं? उनको क्या कुछ एडिशनल मेडिसिन की जरूरत रहेगी ऐसे सिचुएशंस में? यहाँ पे ना बहुत बड़ा फर्क है। अगर हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हम किसी भी लेडी को आराम करने के लिए नहीं बोलते हैं। जब हमने एक छोटे से बच्चे को जनरेट करा और उनके यूट्रस में डाल दिया, तो हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि आप बेड रेस्ट दें। आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर यू कैन गो बैक टू वर्क। यस, हम बोलते हैं कि आपस में रिलेशनशिप नहीं रखनी, दिस इज व्हाट वी टेल एवरीवन। बट इन आईयूआई, आफ्टर वी हैव डन द आईयूआई, हम 15 से 20 मिनट का बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं। बिकॉज अगर हम जल्दी से खड़े हो जाएंगे तो जो हमने शुक्राणु अंदर इंजेक्ट किए हैं वो बाहर आ जाते हैं। लिक्विड होता है ना अराउंड 0.3-0.4 ml, वो लीक करते हैं। परंतु आफ्टर हाफ एन आवर 45 मिनट्स, जब पूरा पेशेंट को डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि ओपीडी से डिस्चार्ज हुआ या आईपीडी से डिस्चार्ज हुआ, तब उनको किसी भी तरह का आराम करने की ज़रूरत नहीं है। वो ट्रैवल कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं, और कोई बहुत बड़े बड़े टीके नहीं लगाने होते, बहुत बड़ी बड़ी गोलियां दवाइयां नहीं खानी होती। दिस इज ऑल अबाउट आईयूआई, पोस्ट आईयूआई केयर। सर, अगर मैं आईयूआई प्रोसीजर किसी पेशेंट को एडवाइस कर रही हूँ तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, पर पेशेंट्स हमेशा पूछते हैं क्या इससे हमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि आईयूआई के बाद हमें हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है या हमारी जान को कोई खतरा हो सकता है? तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? इसके लिए ना गूगल, डॉक्टर गूगल जो हमारे हैं वो हमको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं कई बार। सो हमारी भाई बहन पढ़ते हैं और वो गूगल इज यूनिवर्सिटी है गूगल की, तो वहाँ जाके बहुत सारी बातें सीखते हैं हम लोग। सो आई थिंक, बट ये सवाल अगेन एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आजकल तो प्रिया आईवीएफ के अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, बिकॉज आईवीएफ के अंदर आजकल हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं और नए तरीके आ गए हैं। हम बहुत बड़े बड़े टीके लगाते हैं, परंतु वहाँ पे वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। बिकॉज वी कैन डू फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर इन एन आईवीएफ सेट। आज हमने केस करा और बच्चों को हम स्थानांतरण करेंगे 2 या 3 महीने के बाद में या 1 महीने के बाद में, तब तक ओवरीज आर कंट्रोल। सो जो दो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे पास में आती हैं, वो दो हैं जिसके बारे में सबको कुछ समझना है। और समटाइम्स पेशेंट्स हैव टू बी empowered to understand things, but भी हमें लगता है कि उनको बताने की जरूरत नहीं है, उनको नहीं समझ में आएगा, बट पेशेंट्स आर वेरी एजुकेटेड। अगर वो गूगल पे जाके पूरी दुनिया घूमकर आ जाते हैं, आई थिंक वी हैव ऑल द राइट टू गाइड देम आल्सो। जस्ट रिमेंबर कि दो कॉम्प्लिकेशंस व्हिच कैन बी वेरी वेरी थ्रेटनिंग फॉर एनी पेशेंट undergoing an IUI is ovarian hyperstimulation syndrome and multiple pregnancy। एक ज़माना था जब कहा जाता था कि 2 बच्चे हो गए और 3 हो गए तो बहुत ही अच्छा हो गया, एक ही बारी में पूरा फैमिली कंप्लीट। हमने देखा, हमने काफ़ी टाइम गवर्नमेंट में काम करा, तो सब में 2 बच्चे हो जाने चाहिए, ट्विंस हो जाने चाहिए, एंड देन लाइफ इज ऑल सेटल्ड। आपने भी नोट किया होगा, ये बहुत धारणाएं होती हैं। समय के साथ हमने ये जाना कि अगर हम 2 बच्चों को एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं
तो अगर 2 बच्चे होते हैं एक टाइम पे, दैट वुमन कैन हैव प्रीटर्म लेबर, यानी कि समय से पहले ही बच्चा डिलीवर कर सकता है। सच पेशेंट कैन हैव हाइपरटेंशन, डायबिटीज, दे कैन हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स। धीरे धीरे पॉलिसी आ गई है कि हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर ही एडवाइस करते हैं। अब देख लीजिए, अगर आप अपने फैमिलीज में देखें, अपने शहर में देखें, ट्विंस बहुत कम होते हैं। ट्विंस नहीं होते हैं हर घर में। अगर मेरे 2 भाई बहन हैं तो वो ट्विंस नहीं है। ट्विनिंग विल ओनली अकर, नॉर्मली विल ओनली अकर व्हेन वी टेक सम टैबलेट्स जो कि ज़्यादा अंडे बनाती हैं। और आईयूआई के अंदर हम 2-3 अंडे बनाने का अटेम्प्ट करते हैं कई बार, और आईवीएफ के अंदर हम कई बार 10 से 15 अंडे बनाने का अटेम्प्ट करते हैं। आईवीएफ के अंदर वी नीड मोर एग्स। सो अभी जो और गाइडलाइंस हैं वो कहती है आईयूआई के अंदर या आईवीएफ के अंदर हमें सिंगल ही बेबी चाहिए, हमें दो, बिकॉज हम बच्चों को कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहते। अब आपने डिलीवरी किया, एक बच्चा छोटा है और बेबी इन नर्सरी फॉर 1 मंथ, सो पूरी फैमिली का जो खुशी चला जाता है। बेबी कैन हैव सेरिब्रल, there can be brain problems, there can be heart problems, so we want to have a single child. So this is a problem in case we overstimulate a patient with for IUI. सपोज हमारा एम है मैक्सिमम 2 एग क्रिएट करने का, 1 एग क्रिएट करने का। इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि अगर जब हम किसी को ट्रिगर दे रहे हैं, अगर उनकी बॉडी में 2 से ऊपर और एग भी हैं जो कि 15 मिलीमीटर के हैं, तो हमको आईयूआई नहीं करना चाहिए। या उनके पास उनकी बॉडी में 10 मिलीमीटर के 5-6 फॉलिकल और है, तब भी हम आईयूआई नहीं अबंडन कर देते हैं उसको, बिकॉज अदरवाइज वो जो छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं उनमें से एग बनते हैं और फिर पति पत्नी आपस में रिलेशन रखते हैं और उनमें ट्विनिंग होना शुरू हो जाता है। सो ये सवाल बिल्कुल ठीक है। आईयूआई के अंदर सबसे जानलेवा जो प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए, और स्त्री के लिए तो है ही, बच्चों के लिए भी है, वो है मल्टीपल प्रेगनेंसी, दैट इज नंबर 1। इसे अवॉइड करना चाहिए। तो हमें बहुत ही छोटी मात्रा में दवाई और टीके लगाने चाहिए, और कभी भी 1 या 2 से ऊपर एग फॉलिकल हमें नहीं बनाने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इज ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन। आईवीएफ के अंदर अभी नए तरीके आने से ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन नहीं होता है, बट ओएचएसएस कैन भी जानलेवा। ओएचएसएस के कारण से क्या होता है? ओएचएसएस के कारण से बदन में पानी भर सकता है, देयर कैन बी लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, there may be problem with the brain, problem with thrombosis, lot of things occur in ovarian hyperstimulation। और ये बहुत कॉमन है आईयूआई के अंदर, आईवीएफ के अंदर भी ये नहीं देखा जाता है। सो अगर हम गोली की मात्रा कम रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, टीके एक अच्छी मात्रा में, कम मात्रा में लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, तो उन पर सिर्फ 1 या 2 ही डिम बनेंगे, और अगर 1 या 2 डिम बनते हैं तो तभी ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। बट पेशेंट के जो दिल में जो भावनाएं हैं, येस दे आर राइट, देयर आर 2 डेडली प्रॉब्लम्स विद आईयूआई, और पूरा विश्व इनके साथ जूझ रहा है, वो लड़ रहा है इन चीज़ों के साथ में कि 1 या 2 से ऊपर हम अंडे जनरेट नहीं करें। और आईयूआई के अंदर हमेशा फ्रेश बेबी आता है, आईवीएफ के अंदर हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। सो ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी शुड बी अवॉइडेड इन ऑल केसेस ऑफ आईयूआई। और जहाँ भी हमें लगे कि 2 या 3 या 4 अंडे बन रहे हैं, वी शुड अबंडन द साइकिल एंड नॉट गिव एचसीजी आल्सो। अदरवाइज आप अगर संभोग करेंगे और हमने टीका लगा दिया एचसीजी का, तो फिर ट्विनिंग आ जाता है ऐसे केसेस में। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बट वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। सर, तो बेसिकली हम अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहेंगे कि जो आईयूआई है, चाहे ये एक सिंपल प्रोसीजर है, बट ये रिस्की हो सकता है, हमेशा एक एक्सपर्ट हैंड में करवाना चाहिए। आईवीएफ से जितना लोग डरते हैं उतना डरने की जरूरत नहीं, चीजें बहुत ज्यादा एक क्वालिफाइड डॉक्टर के हाथ में रहती हैं, राइट सर? बिल्कुल। और आईयूआई का जो रेट है ना सक्सेस का, ये तकरीबन 10 से 12-13% के बीच में रहता है हर सेंटर में। एक इंडिकेटेड केस के अंदर अगर हम उनको भारी टीके लगाएंगे और भारी मात्रा के अंदर अंडे बनाएंगे, अंडे बनाने का मतलब फॉलिकल बनेंगे, एग बनेंगे, तो प्रेगनेंसी रेट बढ़ सकता है। तो वी फील वेरी हैप्पी कि भैया इनका तो रेट है 12-13%, मेरा आ रहा है 18%। सो हमें अच्छा लगता है जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो सक्सेस आता है। तो पर ये एक सक्सेस झूठा सक्सेस है। हमको देखना है कि कितने केसेस में मल्टीपल प्रेगनेंसी आ रहा है, कितने में ट्विनिंग हो रहा है, कितने में पेट में पानी भर रहा है।
उन सबको मद्देनजर रखते हुए पूरी दुनिया में, चाहे वो यूरोपियन गाइडलाइंस हैं, चाहे वो अमेरिकन गाइडलाइंस हैं, दे से वी शुड नॉट हैव मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन. दिस इज द ट्रू रेट ऑफ IUI. परंतु हम भावनाओं में बहकर कई बार गलती कर बैठते हैं और हम गोली की मात्रा बढ़ा देते हैं, टीके की मात्रा बढ़ा देते हैं. तो टीके को जहाँ तक पॉसिबल हो 75 यूनिट से ऊपर नहीं लगाना चाहिए, HMG या किसी टीके को. और गोली की जो मात्रा है तो क्लोमिफीन 100 मिलीग्राम या लेट्रोजोल 2.5 मिलीग्राम है, हमें परमिटेड है. कुछ लोग 5 मिलीग्राम इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कर सकते हैं, करना चाहें तो, बट रिकमेंडेड नहीं है. बट कभी भी 5 दिन से ऊपर ही गोलियां मत दीजिएगा. So clomiphene only for 5 days and letrozole only for 5 days, and then HMG in 75 units in case needed. This will avoid all these complications. राइट सर. सर एक लेडी है, उसने IUI प्रोसीजर किया है, तो उसको कब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना चाहिए? कब वो एक्सपेक्ट करेगी कि वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ सकती है? तकरीबन 16 से 18 दिन के बाद में, 60 to 18 डेज के बाद उसे टेस्ट करवाना चाहिए. एंड शी कैन डू ए यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट. घर में किट आता है, बहुत चीप होता है. हर केस में बीटा से करने की जरूरत नहीं है, वो महंगा टेस्ट है, वो ब्लड टेस्ट है. तो सुप्रिया, हमको जितना भी हम कोशिश कर सकें, हमें किसी भी स्त्री को टीके नहीं लगाने हैं, ब्लड सैंपल नहीं ड्रॉ करने हैं. IUI इज ए वेरी सिंपल प्रोसीजर, लेट्स कीप इट सिंपल. सो 18 डेज के बाद यू कैन डू ए यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट. वो कई बार रिपोर्ट गलत हो सकती है, आई एग्री दैट रिपोर्ट कैन बी रॉन्ग, बट इवन BTC की भी रिपोर्ट गलत हो सकती है. तो आफ्टर 18 डेज यू डू इट, वेट फॉर हर पीरियड्स. अगर वो नेगेटिव आ रहा है और अगर पीरियड्स नहीं आते हैं 3-4 दिन में, तो उसको दोबारा रिपीट कर लीजिए. दैट्स व्हाट आई विल से. So keep it as simple as possible. IUI should be as cheap as possible and as simple for the patient, and we should not give her large number of टीके, दवाइयाँ. लोग दिन में हेपरिन के टीके लगा रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन के, सुबह शाम गोली खा रहे हैं, यूरिन के रास्ते में जेल लगा रहे हैं. ये सब IUI में रिक्वायरमेंट नहीं होती. They have to be happy. Patients have to be happy. They have to be told that वो नॉर्मल है. उन्हें जो कर रहे हैं, जो उनकी जो दिनचर्या है वो करनी चाहिए. वो योगा करें, मेडिटेशन करें, स्विमिंग करें, जो करना चाहे वो कर सकते हैं. राइट सर. बेसिकली हम यही कहना चाहेंगे कि IUI एक लेडी है, मेजॉरिटी लेडीज में 5 दिन की दवाई, उसके बाद जब वो IUI प्रोसीजर के लिए आती है तब उसको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है. जब उसका ओवुलेशन हो गया तो उसके बाद हम इंसेमिनेशन करके उसको घर भेज सकते हैं और वो अपना रूटीन रेगुलर एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकती है. बिल्कुल बिल्कुल. सर बाय चांस अगर एक लेडी प्रेग्नेंट हो गई है और हमने उसकी कुछ मेडिसिन स्टार्ट की हुई हैं, तो उनमें से कौन सी मेडिसिन हैं जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है या बंद करने की ज़रूरत है? क्या पेशेंट को घर पे कोई डिसीजन लेना चाहिए या अपने फिजिशियन के पास आके कंसल्टेशन लेना चाहिए? देखो, एक जो गोली है, देखो पहले मैंने बोला कीप इट सिंपल, एज सिंपल एज पॉसिबल. तो फोलिक एसिड की जो दवाई चल रही है वो तो बंद करनी नहीं है हमको, वो चलती है. इसे फोलिक एसिड का टैबलेट आता है 5 मिलीग्राम का, वो लेते रहें. एक और टैबलेट हम सबको अगर हम दे रहे हैं तो इट कैन बी थायराइड का टैबलेट, जो काफ़ी लेडीज़ को लेना पड़ता है. वो बंद नहीं करना होता, परंतु कुछ समय के बाद दे कैन रिपीट देयर थायराइड और उस डोज को टाइट्रेट कर सकते हैं. अगर वो दवाई ले रही हैं, नहीं ले रही तो छोड़ दीजिए. I think that's the only medicine they have to take in an IUI cycle. As simple as possible. हमने उनको बीमार नहीं करना है, हमने उनको बहुत ही स्पेशल महसूस नहीं कराना है कि तुम पूरा एक थैला भर के दवाइयों का खा रहे हैं सुबह शाम, वो नहीं करना है. She has to be, देखो उतने पैसे के अंदर वो रोज़ फ्रूट खरीद सकती है, इतने पैसे के अंदर मतलब वो एक वो ड्रेस खरीद सकती है, इतने पैसे के अंदर वो अपने बच्चों के लिए कुछ या अपने हस्बैंड के लिए कुछ खरीद सकती है. बाय गिव हर अननेसेसरी मेडिसिन्स. दिस इज नंबर 1. इंडिकेशंस हैं सुप्रिया दवाई देने के. अगर किसी भी स्त्री की उम्र ज़्यादा है, शी इज नाउ 39-40 ईयर्स ऑफ एज, ये सब दवाइयाँ देंगे. उनके एक्स को मजबूत करने के लिए हम एम्पिरिकली कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ हम उनको एंजाइम देते हैं, कोक्यू देते हैं, समटाइम वी गिव देम DHA, कुछ हम जेल देते हैं. So that is for a patient who's got a problem. But 99.9% people don't have a problem, because in case I look at my practice के अंदर average age is 40 years of women. They come to me at 30 and 40 years of age. I never see a girl less than 33-34 coming to me ever. मैंने देखा ही नहीं है उनको. 40 की आती है.
बट ये प्रैक्टिस हर जगह सेम प्रैक्टिस नहीं है ना, बहुत जगह। आपके पास क्या एज है, आपसे जानना चाहूँगा, आपके पास किस एज में आती हैं लेडीज़ इन अ बोर्ड? यूजुअली सर हमारे पास 30s में फीमेल्स इवैल्यूएशन के लिए आ जाते हैं सर। आ कई जाती बार है तो ना? 23, 24। टुडे आई हैड इन अ ओपीडी अ पेशेंट मैरिड सिंस 7 मंथ्स, 21 ईयर ओल्ड, जो अपना इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन के लिए आई थी। चली आई, हाँ। हाँ, सो आप, बिकॉज़ यस, आप कुछ कह रहे बिकॉज़ उसकी फैमिली में इनफर्टिलिटी का हिस्ट्री है इन-लॉज़ के लिए, तो शी इज़ प्रेशराइज़्ड कि उसको भी अपना इलाज करवा लेना चाहिए और कोई फैक्टर है तो जान ले। थे? एब्सोल्युटली। पर हमारे लिए क्या रहता है, वेयर आई एम वर्किंग, probably the women are all working, they're in nuclear families, so they get married at 38, 39. यहाँ शादी इनकी लेट होती है। I mean गुरुग्राम, no, they get married at Yes, 38, 39. At 40, 41 they start thinking कि अभी हमको बेबी चाहिए। But that time, उनके डिम की मात्रा, AMH कम हो गया, AFC कम हो गया। तो वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें उनको देने का ट्राई करते हैं, जो कि वो भी एम्पिरिकल है। तो शुक्रिया, जो हम दवाइयाँ देते हैं, ये गोली खा लो, कोएंजाइम क्यू ले लो, वी गिव देम DHAs, तो वो भी एम्पिरिकल दवाइयाँ हैं, प्रूवन नहीं है। कुछ एविडेंस है कुछ कोक्यू के लिए, बट ओवरऑल अभी आई थिंक वी हैव टू गेन मोर confidence on all the drugs which we are giving, but we are giving empirically. But for a routine patient, don't give anything. Folic acid is good enough for them. Conceive करना है तो उनको आपस में रिलेशनशिप रखना चाहिए 3-4 दिन आफ्टर IUI एंड दे विल कंसीव। परंतु अगर हमने HMG का इस्तेमाल करा है, एंडोमेट्रियोसिस है, हैव ए पेशेंट ऑफ PCOD जहाँ पर हमने टीके लगाए हैं, इन दैट केस वी हैव टू ऐड इंजेक्शंस, अदरवाइज वी डोंट ऐड एनी इंजेक्शंस। और अगर हमने, आजकल एक फैशन ही बन गया है, जो भी बहन हमारे पास में आती है उनको हम एक थैली देंगे दवाइयों की, वो मतलब कि वो परेशान हो जाती है कि ये सुबह शाम ये खाली पेट या रात को उसका पूरा जीवन ही टिक टिक में निकल जाता है, दवाई खाने में निकल जाता है। एंड दे आर नॉट रिकमेंडेड, बट वी फील वेरी हैप्पी हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं। शी फील वेरी हैप्पी कि अपने लिए कुछ कर रही है, बट ओवरऑल हम दोनों अपना नुकसान कर रहे हैं। सो हमें दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, परंतु अगर हमने किसी इंडिकेशन से उनको ल्यूटियल फेज सपोर्ट दिया, जैसे उनको हमने उनको कोई खाने के लिए ओरल दिए प्रोजेस्टेरॉन से, हम उनके वजाना में डालने के लिए दिए, या फिर हमने उनको टीके लगाए, अगर हमने लगाए तो वो गोली चलेगी, फिर दवाई बंद नहीं करनी है। कब तक चलेगी रिकमेंडेशन किसी के पास में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं एक बार हार्ट बीट आ गया 6 हफ्ते में तो बंद कर दो, कुछ कहते हैं 8 हफ्ते, मैं कहता हूँ 70 दिन। ये मेरी पॉलिसी है, आई गिव इट फॉर 70 डेज। सम पीपल गिव इट टिल 8 वीक्स, बट ये डिवाइडेड है आई थिंक। बट हार्ट बीट आने के बाद आप बंद कर सकते हैं 7-8 वीक्स के बाद। मैं थोड़ा डर जाता हूँ, मैं थोड़ा डरा हुआ डॉक्टर हूँ, और मेरे पेशेंट्स आर अराउंड 39-40 ईयर्स ऑफ एज, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। मतलब यंग वुमेन हार्ट बीट पे बंद कर दीजिए। एंड वन मोर मेडिसिन, किसी भी हमारी बहन का लाइनिंग नहीं बढ़ रहा है तो वी गिव अ टैबलेट कॉल्ड ईस्ट्राडियोल, का गोली देते हैं खाने के लिए, तो लाइनिंग बनाने के लिए दवाई देते हैं, और फिर हम IUI भी कर देते हैं साथ में। तो ऐसे केस के अंदर देन वी हैव टू कंटिन्यू the estradiol tablet also for, along with the luteal phase support for 70 days or till 8 weeks. Has to be done, but otherwise keep IUI as simple, as comfortable for our patients. Tell them to be happy. हम उनको एक तो बेचारी वो पहले IUI करो, रोज अल्ट्रासाउंड करो, और फिर खाने के लिए पूरा एक बैग दवाई का दे दो, तो उसका पूरा जीवन ही इसमें निकल जाता है। तो ये इसकी जरूरत नहीं है करने की। right, sir. थैंक यू। Thank you, sir. एनी सर अदर एक क्वेश्चन? यस। सर एक क्वेश्चन और है सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि पोस्ट IUI प्रोसीजर या IUI में मेडिकेशन का एक पेशेंट का कितना लगभग खर्चा रहता है? हाउ मच कैन अ पेशेंट बी प्रिपेयर्ड फॉर? ये हमने लास्ट हमारा अगर आप देखें, वी हैव डन ए वेरी नाइस IUI पर ही हमने किया था, फेसबुक लाइव किया था, बहुत सवाल पर ये सवाल दोबारा उठकर आए हैं, तो आई विल गिव यू रिपीट आंसर। देखिए, जो गोली लेट्रोजोल की है थोड़ी महंगी होती है, तो तकरीबन 5 गोली खानी होती है। क्लोमिफीन सस्ती होती है थोड़ी। तो अगर आप दवाइयाँ देखें तो 5 गोली क्लोमिफीन की, 5 लेट्रोजोल की, तो तकरीबन अराउंड 200-250 में ये पूरा दवाइयाँ आ जाती हैं। क्लोमिफीन सस्ती आती है। फिर लगेंगे टीके। टीके ऐसे है कि 3 या 4 टीके लगते हैं HMG, वो भी अगर लगाने हैं अगर तो, पर लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट डिमांड करते हैं।
तो हमने कहा एक टीका तकरीबन पड़ता है 1000 रुपये का, हमने 3-4 टीके लगा लिए हमने। अगर हमने 150 लगाया तो वो पड़ेगा अराउंड 13-14 मिनट का, तो मान के चल रहा हूँ कि 3-4 हज़ार के टीके, आई एम जस्ट सेइंग एक एवरेज नंबर, और 200-300 रुपये के टैबलेट्स, तो ये हो गया अराउंड टोटल मिला के अराउंड 3-3.5 हज़ार का खर्चा आएगा इनका दवाइयों का। फोलिक एसिड एक बहुत ही चीप दवाई है, फोलिक एसिड अराउंड ₹40-50 की फोलिक एसिड आ जाती है, तो कुल मिला के अगर आप देखें सो अराउंड 3-3.5 हज़ार के अंदर पूरी दवाइयाँ आ जाती हैं पेशेंट की। बट अगर हम उनको देने शुरू करेंगे विजाइनल जेल या फिर खाने वाली महंगी दवाइयाँ, तो तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपया उनका खर्चा आएगा। सो अराउंड 5,000 के अंदर IUI जब हम स्टार्ट करते हैं और जब हम ख़त्म करते हैं रिजल्ट आने तक, आई थिंक विद इन 4.5-5,000 रुपीज़ वी शुड बी एबल टू मैनेज द होल IUI साइकिल। और अगर हम ठीक से करें सिलेक्शन पेशेंट्स का, मे बी अराउंड ₹2,000 ओनली, नॉट मोर देन दैट। Right. दिस इज व्हाट वी डू, व्हिच वी नॉर्मली डू। बट अगर कुछ और इंडिकेशन है, अगर हम उनको ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग हेपरिन इंजेक्शंस, तो फिर हेपरिन के टीके का रेट बढ़ेगा। हम उन्हें महंगी दवाइयाँ देना चाहते हैं जिनमें उनके डिम की मात्रा बढ़ती है, तो उनका फिर और रेट बढ़ेगा। बट आई थिंक 3,000 में हो जाना चाहिए, प्लस IUI का खर्चा। एक्सपेंडिचर फॉर एन IUI इज अराउंड ₹8 to 9 और 10,000 रुपीज़। तो एक IUI साइकिल जो हमने कैलकुलेट करा था, तकरीबन पड़ता है तकरीबन 13-14 हज़ार का पड़ता है IUI साइकिल किसी भी पेशेंट को। Right, sir. स्कैन भी आएंगे ना सुप्रिया, इसमें 3 Yes. अल्ट्रासाउंड भी आएंगे पेशेंट के लिए। हर अल्ट्रासाउंड विल कॉस्ट अराउंड ₹700-800 और 1,000 रुपीज़। Maybe we'll do a semen analysis for the man, it will cost him around ₹500। तो अराउंड 13-13.5 हज़ार के अंदर ये पूरा एक साइकिल हो जाना चाहिए। बट इट डजंट इंक्लूड वर्कअप। अगर हम Right. वर्कअप करेंगे पेशेंट का, ट्यूब टेस्टिंग करेंगे, इनिशियल सेमेन एनालिसिस करेंगे, विल डू हर HSG, ये सब अगर करने पर आएंगे तो फिर तकरीबन 5,000 रुपये खर्चा और जुड़ Right. जाएगा इसमें। सो Right, sir. दैट इज अराउंड 18-19,000 रुपीज फॉर वन IUI साइकिल। और उसके बाद जो IUI साइकिल करेंगे उसमें खर्चा तकरीबन 13,000 का आता है। पहली वाली महंगी पड़ेगी, दैट विल इंक्लूड वर्कअप, जैसे हम जांच करते हैं ना HIV का, VDRL का, ब्लड शुगर, थायराइड, हीमोग्लोबिन, विटामिन D। तो अगर ये पहली बारी में होते हैं, बार बार नहीं करते हम, तो पहली साइकिल के अंदर तकरीबन 18-19,000, सेकंड साइकिल में तकरीबन 12 से 13,000 का खर्चा। Right, sir. Thank you, sir. हाउ इज योर प्रैक्टिस? अबोहर के अंदर कैसी प्रैक्टिस होती है, आप हमें बताएं। सर, अबोहर के अंदर जनरली मैंने देखा है कि IUI कोई कर ही नहीं रहा है सर। या तो पेशेंट्स IVF के लिए जा रहे हैं या फिर सिर्फ घूम रहे हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि IUI में जो सीमन सैंपल यूज किया जाता है वो किसी और का डाल देते हैं। हाँ, ये ऐसा है क्या? मिसकंसेप्शन है सर, काफी हद तक ओके ओके। मिसकंसेप्शन है। या फिर नाउ वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू देम कि ART गाइडलाइंस के बाद चीजें बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं और ऐसा सिचुएशन चेंज हो चुका है। जी जी जी। But nobody per se is doing a IUI, sir. I've not come across a patient with a successful IUI. ओके ओके, अच्छा ओके। बट इसका रेट तकरीबन आप मान के चले 12-13% का ही रहता है ओवरऑल एवरेज, अगर हम मान के चले। Yes, sir. बट वेरी आई ओपनिंग थिंग यू हैव टोल्ड मी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। anything else you like to share from your side? Thank you so much. अच्छा लगा आपसे बात करके, and I think we had to learn quite a lot, and all our audience who are here, it's wonderful interacting with you. ये हमारा एक endeavor है from our side that Dr. Supriya and me, we sat down together with you and took you through a journey of a very simple thing called IUI। और IUI एक बहुत ही कॉमन सी एक प्रणाली जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो सिंपल तरीका होता है IUI करने का। हमें इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, वी शुड कीप इट वेरी वेरी सिंपल। Right, sir. सो आपसे बात करके अच्छा लगा। हमारे नंबर आपके सामने हैं, you have number of Supriya, you have my number in front. In case we can ever help you in any way, please do contact us. We keep doing such Facebook lives for your education very very frequently. In a month we do 2 such programs. So you can visit our website, you can visit our YouTube channel, you can visit our Facebook, LinkedIn. We're all there. If you need any help, do contact us. And God bless all of you. Do well or khush rahiye. Thank you, sir. Thank you Thank so you. much. Thank you. Thank you, sir. Thank you so Bye. much, sir.